और चलिए सीधा रुक करेंगे। इस वक्त शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Conversation, allegation, everything that Hussein will invest, that will come what is the truth. But from my side, what I understood is, important issue is what was the main case. The main case was certain items were kept in particular vehicle, somewhat near to house of Sri Ambani. Then, of course, police must have started investigating who has kept this vehicle, who owns this vehicle, and it looks like that they come to conclusion, or at least they got the information, may not be conclusion, but information, this particular jeep was in the custody of one deceased Hiren. And one fine morning we read that Hiren was assassinated. Now the investigation might have started here. What is the role of Hiren in this jeep? Is it correct that jeep was with him for many months? Is it correct that his jeep was taken from him by some police officers? And one fine morning we read, Hiren is no more. Now, ATS Bombay has yesterday or today announced they have arrested two persons. In connection with assassination of Hiren. So I think एक तो बात साफ हो रही है कि हिरेन की हत्या किसने की। हिरेन की हत्या करने वाले पुलिस को, एटीएस को जो लगते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया। अभी बात आएगी आगे इन्वेस्टिगेशन में कि why he has done this, these two gentlemen has done this, whether somebody has told him. That is in investigation process. Facts will come today, tomorrow, day after tomorrow, can't say, but something will happen. But I am happy about one thing. The main case was not the allegation or anything from CP. Main case was certain material near Mr. Ambani's house that was kept in Jeep. Then the Jeep was the custody of so and so C, and ultimately the Jeep who was claiming he was the owner of on his possession, he was assassinated, and ATS Bombay had reached and arrested those who were involved in assassination. So, real case was that, and I think Bombay ATS is going on correct direction. So just to divert this entire investigation, might be some people might be saying about something happened between him and Home Minister. Home Minister was asking such and such thing. When they made a statement, the Home Minister was asking, is there any evidence? Is there any actually cash transaction was given? Any allegation? Just vague allegation has been made, and I honestly feel the investigation which is reaching at pinpoint, there was effort to divert
that investigation, and now the truth is coming. Now you can ask if you want it. Side or the Home Minister. So is the meeting to be held today? Any decision that you will be arriving at today? Since yesterday you said that today you will. Yeah, in fact, when we got all this information, when we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation, question doesn't arise. सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार। सदन में हंगामा हो रहा है, तो क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. दबाव टाकण्यात येत आहे का अशा पद्धतीने पत्र लीक करून महाराष्ट्र सरकार किंवा गृहमंत्र्यांना अडचणीत टाकणं, सरकारला अडचणीत टाकणं हे केलं जाते का राजकीय षडयंत्र वाटते? इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्यास एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि अगर जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तब तक अनिल देशमुख को स्टेप डाउन करना चाहिए, क्योंकि उनके होम मिनिस्टर रहते एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो? सीधी बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। तुम्ही अर्ध सत्य सांगत आहात, तुम्ही पूर्ण सत्य सांगत नाही। इतकंच नाही तर देवेंद्र फडणवीसांनी आरोप केलाय की याआधी पण 2 पोलीस अधिकाऱ्यांनी रिपोर्ट दिले, ते आपण लपवत आहात, हे तुमच्यावरच आरोप केलाय। माझ्या त्याच्यात म्हणजे माझं भाग्य है कि उन्होंने मैं इस्तीफा ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सत्य, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज़्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। शिवसेना का कहना है परमवीर सिंह जो है वो बीजेपी के आदमी हैं और उन्होंने एलिगेशन लगाया है। एनसीटी का इस पर क्या कहना है, रिएक्शन? दूसरा, आपका क्या अभी तक सीएम साहब से कोई बातचीत हुई है? सीएम साहब अभी तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये कुछ पार्टी में थे या कोई है, या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, आपका कोई रिएक्शन नहीं है? एनसीपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है परमवीर सिंह के इशू? मैंने कभी देखा ना, मैं उनको कई सालों से देखता था, इनके बारे में कुछ बातें इधर सुनने के लिए आती थी, मगर ये पॉलिटिकल पार्टी में है ऐसे मैंने कभी देखा नहीं। जिस दौरान आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल गए और अब मुझे कंफर्म है कि वो नागपुर में थे, इस सारे संबंध में क्या उद्धव ठाकरे साहब से आपकी बातचीत हो रही है? खुद मुख्यमंत्री है, एलिगेशन उन्हीं पे लग रहा है, महाराष्ट्र सरकार चल रही, क्या उनसे कोई बातचीत हो रही? मैंने कल ही उनसे बात की थी, मैंने आपको कहा था कि तो सर अभी तक सुनिए एक बार पूरे होने देना। मैंने उनसे बात की थी और उनको अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो भी उनके पास हम भेजेंगे और उनके सामने सच्चाई आएगी
आई भी हो सकती है इससे पहले, वो मुझे मालूम है। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। नहीं, सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसमें और कोई एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं। इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर, कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर एक जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख साहब हॉस्पिटल में थे कोविड हुआ था उन्हें, तो क्या एनसीपी अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे रही है? दूसरा सवाल ये कि अगर जांच चल रही है और गृह मंत्री वो बने रहेंगे तो जांच भी तो प्रभावित हो सकती है सर। नहीं तो बात जांच, अभी जांच की बात इस बारे में तय करना है सीएम साहब को। मैंने कल भी कहा था अभी जांच एक्चुअली शुरू नहीं। कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अभी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। गृहमंत्री पदावरती असताना अनिल देशमुख यांची चौकशी कशी करतायत? अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घ्यायला हवा। नाही पॉईंट आता चौकशीचा इश्यू कुठं आला की जे एलिगेशन होतं तेच खरं नाही हे सिद्ध दिसतंय आता। एक सीरियस एलिगेशन भी आपने लगाया है कि एटीएस की प्रोब राइट डायरेक्शन में जा रही थी और शायद कहीं और नाम सामने आते, इसीलिए जो है डाइवर्ट किया गया। अभी अगर उसमें पहला केस देखा जाए जब एक्सप्लोजिव मिले थे, उस केस में भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। तो सर क्या आपको लगता है कि जस्ट टू डाइवर्ट द अटेंशन ये किया गया है, चाहे जेलेटिन स्टिक्स वाला हो अंबानी के घर के बाहर और चाहे मनसुख हिरेन की मौत का मामला हो? सर मालूम नहीं, सिर्फ ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में मेरा एटीएस पर भरोसा है। एटीएस जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी। ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा, और इसलिए इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। कमलनाथ आपल्याला काल भेटले, काँग्रेस बरोबर आपली कोण भेटले? कमलनाथ काल आलेले आपल्याला भेटायला, कमलनाथ काँग्रेसचे नेते। नहीं ते दुसऱ्या कामाचं ऐसा काही संबंध नाही। कमलनाथची या प्रश्नावर चर्चा सुद्धा झाली नाही, त्यांचं कारण नाही। मध्य प्रदेशमधल्या काही प्रश्नासाठी ते माझ्याकडे आले नाही, कोणाची चर्चा नाही। परमबीर सिंग यांच्या पत्राचा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तरीही अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असताना सचिन वाझे आणि इतरही पोलीस अधिकाऱ्यांचा त्या जिलेटिनच्या कारमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट आहे, याची नैतिक जबाबदारी अनिल देशमुखांनी स्वीकारावी असं नाही वाटत का? त्यांचा पोलीस खात्यावरती वचन नाही? माझ्या मते याची जबाबदारी ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बघतो त्याची आहे। पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है। एक असं म्हटलेलं आहे की अनिल परब ज्या प्रकारे पवार सर आपकी पार्टी में दो स्टैंडर्ड है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पे जिम्मेदारी सौंपी, आपके तमाम जो नेता, कल जयंत पाटिल ने भी कहा कि इस्तीफा नहीं होगा, तो एनसीपी के अंदर दो स्टैंड क्यों? शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इधर मुंबई से विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। विकास, शरद पवार कह रहे हैं सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन आज एक मीटिंग होने वाली है उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि कल शरद पवार ने कहा था कि आज फैसला होना है इस पूरे मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे समझते हैं कि सरकार की फजीयत हुई है, सरकार संकट में है, लिहाजा बैठकों का दौर चल रहा है और आज की बैठक को भी इसी मद्देनजर काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने दिल्ली में साफ कर दिया, हालांकि इस बात के संकेत उन्होंने बीते शाम को ही दे दिए थे कि एनसीपी गृह मंत्री पर बिल्कुल कार्रवाई करने नहीं जा रही है, वो बिल्कुल मानती नहीं है कि इस पूरे एपिसोड में गृह मंत्री का कोई इन्वॉल्वमेंट है, उन पर जो आरोप लगे हैं उसके सत्यता की जांच होनी चाहिए। और आज तो शरद पवार खुद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर सामने आ गए, जिसमें वो ये कहते हैं कि जिस कालखंड की बात परमबीर सिंह अपने आरोपों में कर रहे हैं, उस समय तो गृह मंत्री आइसोलेशन में थे, वो क्वारंटीन थे, कोरोना पॉजिटिव थे। तो ऐसे में परमबीर सिंह के ही आरोपों पर सवाल उठाकर एक किस्म से क्लीन चिट दे दी गई है गृह मंत्री अनिल देशमुख को। और शरद पवार जिन्हें की राजनीति का एक बहुत तगड़ा अनुभव है, वो ये बेहतर तरीके से जानते थे
कि अगर अनिल देशमुख पर कोई आंच आती है, उन्हें गृह मंत्री पद से हटाया जाता है, तो सरकार खतरे में आ सकती है। और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश करते हुए एनसीपी नजर आ रही है। तो अब जो बैठकों का दौर है उसमें ये समीक्षा की जाएगी कि आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण पर कैसे ताला लगाया जाए। जो भी अप्रहेंशन लोगों के मन में है, विपक्षी पार्टियों के मन में है मनसुख हिरेन प्रकरण को लेकर, उसमें किस तरीके से विराम लगाया जाए और ये बताया जाए कि जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से चल रही है। सीधे लिए चलते हैं। शरद पवार इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। Sir, this is Anil Deshmukh's page if you want to see. I am giving this. That's fine, sir. But he has just press conference. Video conferencing ची प्रेस कॉल होती. अच्छा, I was told this is a video conferencing press statement. What statement? VC किया है. ये देखो घर पे खड़े बैठे घर में बैठेंगे ना VC में आदमी घर पे ही बैठता है. लग रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है. सर माइक आईडी ये वीसी की बात है जो बताया आपके सामने ही बताया, इसलिए मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता। और इम्पोर्टेंट ग्रोथ ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ग्रोथ ये बात है कि ये इनके घर के सामने जो बात हुई थी, एक जिसकी हत्या हुई वो 2, इसकी हत्या को कौन जिम्मेदार है वो 3। ये सीरियस बात आप छोड़कर आप डाइवर्ट कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। इतना मुझे आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इनफ इज इनफ। सर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे बाला साहब फुराट और अशोक चौहान। उन्होंने कहा बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है, लेकिन इनका भी एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है। आपकी सहयोगी दल का ये बयान आया है, जो महाराष्ट्र के इंचार्ज हैं ऐसी पार्टी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड की बात की। उन्होंने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझसे बात नहीं की। जहाँ तक मुझसे बात हुई मैं मेरे पास इन्फॉर्मेशन, इस पर मैंने कमेंट करना ठीक है। और किसी ने कुछ किया होगा तो इस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। और सब ऐसा भी कुछ है कि एनसीपी में कुछ लोग चाहते हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा दें, ऐसा भी कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। Sir, I know you came back and reverted in the press conference to all the details. अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यासाठी संजय शिवसेनेचा काही दबाव आहे का अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याचा? कारण की संजय राठोड यांचा एकीकडे राजीनामा घेतला जातोय, दुसरीकडे गृहमंत्र्यांवर एवढ्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होत असताना गृहमंत्र्यांचा राजीनामा का घेतला जाऊ नये अशी देखील त्यांची ऐसा क्या आरोप? nobody has made any pressure or discuss on Shivsena side with me. Sir, nobody is questioning whatever documents you have. Do you think that Anil Deshmukh kept you in the dark giving these documents while he is doing a press conference on 15th February with lots of mics, like we might have, like journalists might have come, na sir? हाँ, होता है ना। हम मेरे पास कई बार हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्रेंस होती है, अकेले नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहते और पार्टी के नेता होते। मैं मुंबई से बात करता हूँ, एक इलाहाबाद से बात करता है, एक लखनऊ से बात करता है। ये सिस्टम आजकल है। आज आप देखिए हमेशा आजकल हम लोग आप लोगों को उड़ती नहीं है। तब तो वो परमवीर से भी मिल सकते थे ना सर, तब तो वो परमवीर से भी मिल सकते थे, सचिन वाजे से भी मिल सकते थे। कुड हैव मेट द केस पीपल सामने जब मीडिया से मिल सकते थे। 15 फरवरी को जो परमवीर जी कह रहे हैं सही भी हो सकता है ना सर, कि मिड फेब में मुलाकात किया। अनिल देशमुख म्हणले मी हॉस्पिटलमधून घरी जाताना हे सगळे उभे होते, मी 2 मिनिटं थांबून त्यांच्याशी बोललो। थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर, क्लियर नहीं है। मालूम नहीं है, मैं कैसे क्लियर करूँगा? जो इन्फॉर्मेशन मुझे लिमिटेड है वहाँ पे क्यों बात करूँगा? नो क्वेश्चन नहीं, इनफ। I have replied. referring to the letter, sir, also point something out on the letter, sir. जो हमारी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्या क्लीन चिट देने के लिए जल्दबाजी कर रहा है? Repeat your question. आरोप ये लग रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो अनिल देशमुख को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? किसकी जल्दबाजी की? सर यू आर सेइंग कि हम लोग को कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की, ऐसी कोई खास जरूरत लगती नहीं है प्रूफ की। मैंने कहा कि अभी जो हमारे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई है, इससे ये बात दिखाई देती है कि
मेन इशू को डाइवर्ट करने की साजिश करती है। पवार सर, कोई नहीं कहेंगे ऐसे कर रही है दोनों। सर जैसे आप ब्रीफिंग हम लोग से बातचीत कर रहे हैं, अभी तमाम लोगों ने पूछा, जैसे आप ब्रीफिंग कर रहे हैं उसी तरह अनिल देशमुख का ब्रीफिंग है, तो आप जिस आधार पर उनको क्लीन चिट देने की बात करें, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आधार है इतना वो कहा, गलत है, क्योंकि उनके मैंने व्यूज आ गए। इतना कहा कि उस समय वो हॉस्पिटल में थे, ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये बात मैंने आपको कही। वीडियो आ गया है कि 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस तरह की बात सामने आ रही है, थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सस्पिशन है, तो क्या आपको नहीं लगता इसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए? मैंने ये कहा था कि भाई सीएम साहब की अथॉरिटी है, सीएम साहब इसमें जो कुछ कर सकते हैं, आवश्यकता उनसे रहती है वो कर सकते हैं। सर इसी में एक और सवाल ये मैंने कल भी कहा था और आज भी कहता हूँ। सर इसी में सवाल है, एनसीपी का क्या स्टैंड है? एनसीपी चाहती है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अनिल देशमुख और परमवीर। बात एनसीपी के प्रेसिडेंट के सामने ये कागजात आने के बाद इसमें जो एलिगेशन हो रही है ये क्लियर हो नहीं रही। ऐसी परिस्थिति में खाली किसी ने तो एलिगेशन किए। अच्छा, एलिगेशन किसने किए? जिसके खिलाफ कुछ न कुछ कदम उठाए गए थे और इससे नाराजगी हो रही थी, ऐसे लोगों ने एलिगेशन किए थे। इस बारे में जो कुछ गवर्नमेंट को करना, अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो फाइनल अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर जो फाइनल अथॉरिटी, दे गॉट एवरी राइट टू वेदर दे वांट टू इंक्वायर देयर ऑफिसर, their minister or their any other colleague. We have no objection. We will not come in that issue. देशमुख प्रकरणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांचे तुमची काही फोनवर आता संवाद झालेला आहे का सर? नाही, मी कालच सांगितलं. I have talked with him. Just we have let nothing. सर कालच्या बैठकीत काय झालं? काल अजित पवार, जयंत पाटील या ठिकाणी आले होते, संजय राऊतही तुम्हाला भेटले, प्रफुल्ल पटेलही भेटले. काय नेमकं झालं होतं कालच्या बैठकीत? नेमकी कुठल्या विषयावर चर्चा झाली? आमच्या बैठकीत पंढरपूरला कोण उमेदवार उभा करायचा याची चर्चा झाली. आज तिथं बसून तो कॅन्डिडेट, तिथं बाय इलेक्शन आहे, त्या बाय इलेक्शनच्या संबंधीची पुढची पावलं टाकली. काही कॅम्पेनच्या दृष्टीनं आणखीन काय करायची आवश्यकता आहे त्या गोष्टीची चर्चा. प्रदेशाध्यक्षांकडनं राज्यातल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला नाही तुम्ही? राज्यात आपल्याबद्दल काय मत आहे याचा आढावा प्रदेशाध्यक्षांकडनं घेतला नाही का कालच्या बैठकीत या प्रकरणाचा? मला काय फारशी त्याच्यात आवश्यकता वाटते. सर एक और जानकारी आई है हम लोग के चैनल में अभी परमवीर सिंह को लेकर कल आपने कहा था कि 100 करोड़ के कलेक्शन का जिक्र नहीं है, कल आपने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी, लेकिन अभी परमवीर सिंह के हवाले से ही एक जानकारी आ रही है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है। उनका कहना है कि जब पैसे के बारे में पूछा जाएगा तब उसकी जानकारी वो जरूर देंगे 100 करोड़ के बारे में। ठीक है, इनका जो लेटर है उनका खुद का, इसमें 100 करोड़ की बात है। जी आपने कहा था कि कलेक्शन का जिक्र नहीं है, उन्होंने कहा है नहीं, एक जगह पर उन्होंने कहा था 50, यानी उन्होंने मीडिया ने तो इसमें 100 किया है। मैंने फिर अभी देखा ठीक तरह से, तो इसमें 100 का उल्लेख है। चलिए, थैंक यू। तो शरद पवार को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस टाइम पीरियड का जिक्र परमवीर ने अपनी चिट्ठी में किया है उस टाइम पीरियड में देशमुख और वजह की मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त देशमुख जो थे कोरोना पॉजिटिव थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने बाकायदा इसके पेपर भी सामने रखे हैं। जब देशमुख भर्ती थे उनके जो डिस्चार्ज पेपर और भर्ती पेपर थे वो उन्होंने मीडिया के सामने रखे। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला सीएम लेंगे, सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, मुझे महाराष्ट्र के एटीएस पर पूरा भरोसा है, जांच से पहले फैसला सुनाना ठीक नहीं है। आरोप जो हैं वो पूरी तरीके से गलत है, यानी कि देशमुख के इस्तीफे का सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री उद्धव जानते हैं क्या करना है। तो पवार के दावे पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बता दें आपको कि 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे देशमुख। अमित मालवीय ने कहा है पवार के दावे पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 फरवरी यानी वो टाइम जब शरद पवार बता रहे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती थे और उस दौरान उनके और वजह की मुलाकात नहीं हो सकती थी, उस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये कहा है अमित मालवीय ने, जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे देशमुख और पवार का जो दावा है उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर लगातार हंगामा हो रहा है।